Welcome back to my channel Study with Mass. In previous video we have studied regarding your exercise 4.1 quadratic equation first question. So today without wasting the time let us move to the next question, that is our second main. Okay, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है. Question number 2, represent the following situations in the form of quadratic equation. आपको situations को दिया गया है, आप उस सिचुएशंस को किस फॉर्म में लिखना है. यस, उस सिचुएशंस को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. सो वंस अगेन बताइए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेर x पावर शुड बी 2, a शुड नॉट बी इक्वल टू 2. तो हर वीडियो में मैं इसको बता रही हूं ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन परफेक्ट हो जाए. ओके, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर. क्या करना है इसको, जस्ट नो नीड टू सॉल्व एनी इक्वेशन, ओनली यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. दैट्स इट. चलिए देखते हैं क्वेश्चन. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. देखिए इसको आप इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल्स में आप इसको कर चुके हो. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे एज वाले क्वेश्चंस and unknown like need to consider x plus 2, making the equation, then getting the answer, all these things you have done. Then this is not new to you. You know how to make the equations. Let us see the area of the rectangular plot. Area is given to you. Area given, what is given? You just note down that. So given area of rectangular plot, that is 528 meter square. ठीक है बेटा. The length of the plot in meter, they have not given how much it is length, but they said it is 1 more than the twice of its breadth. तो length क्या है, length breadth के ट्वाइस करने के बाद भी और एक ज्यादा है, मतलब वी नीड टू प्लस 1 टू द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ. तो हमारा ब्रेथ क्या हुआ. सो वी हैव टू कंसिडर लेट ब्रेथ बी क्या करना चाहिए, x मीटर. They have given in the bracket it is meter. So they have told about the length, but they did not given what is your breadth. So we need to consider breadth as x meter. ठीक है, x हो गया आपका. चलिए अब बताइए लेंथ क्या होगा. So therefore length equal to, क्या कहा है उन्होंने, is 1 more than का मतलब क्या होता है, एडिंग प्लस वन करना है आपको. किसके साथ में प्लस 1 करना है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड. तो आपका ब्रेड है x, ट्वाइस ऑफ ब्रेड का मतलब होता है 2x, एंड 1 मोर है x का मतलब हो गया आपका प्लस 1. क्लियर. यस. सो ट्वाइस ऑफ ब्रेड प्लस 1. इस स्टेटमेंट का मीनिंग आपको मिल चुका है. नाउ यू नो breadth and length of the rectangular plot. Area is given. You know the formula of area. What is area? Area of rectangle. What is your formula? It is L into B is equal to, so L into B कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर. So length into breadth is 528. Take that 528 here. What is your L? It is 2x plus 1. You have to substitute the equation, this
numbers or the variables, okay, into your b, that is x, or directly you can write outside the bracket, x bracket itself says it is multiplication, okay, 528. So solve the bracket now. 2x into x is 2x square plus x into 1 is x. 522 you have to take to this side. Why? Because you want quadratic equation form. So it becomes minus 528 equal to 0. This is in the form of quadratic equation, ax square plus bx plus c. So this is your required answer. इसके next आपको कोई solution नहीं find out करना है. They said represent the following in the form of quadratic equation. So this is your quadratic equation. Yes, note down this. चलिए देखते हैं आपका second question. The product of two consecutive positive integer is 306, 306. We need to find the integers. Integers, you know what are the integers? Yes, positive and negative. Yes, numbers plus 1, minus 1, है ना? Integers. Okay. The product of two consecutive positive integer, they have given positive. Consecutive means continuous. For example, 2 and 3. These are continuous two integers, that is known as consecutive integers. Okay, positive, they are not negative. Product of this, product means multiplication of this, is how much? Is 306. Then you have to write the quadratic equation. These are just example I told. Consecutive means continuous. They have not given which numbers they are. Okay, so क्या करोगे आप बेटा? Consecutive मतलब continuous होता है. 2 and 3 हो गया. Suppose your 2 is x, तो आपका 3 को किस टाइप में लिखना पड़ेगा? 2 plus 1 is 3, so that your next term is x plus 1. Simple. You got the equation. Right here given product of the two integers, consecutive integer, it is 306. Okay, we need to find the, what we have to find? Quadratic equation. So let first integer be x. Then what about second integer? Therefore second integer is x plus 1. So you know product equal to 306. प्रोडक्ट को कैसे लिखोगे बेटा? x into x plus 1 है ना प्रोडक्ट. So write like that, x into x plus 1 equal to 306. Now what you are going to do? Yes, simplify. X into x is x square plus x into 1 is x, and 306 if you will take to this side it becomes minus 306 equal to 0. लो आ गया आपका quadratic equation. How easy is this, right? Now do next one. चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर. तो लो आ गया आपका एज वाला क्वेश्चन. सो सम स्टूडेंट्स डोंट लाइक सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे एज आता है, कंफ्यूजन हो जाता है. उसकी माँ इतने साल की, बेटा इतने साल का, वो 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, बिफोर 3 years, अपकमिंग नेक्स्ट 10 years, प्रोडक्ट क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आता है ना. चलिए इजी वे में हम लोग समझते हैं आज. तो आपको इस वाला प्रॉब्लम अगर समझ में आ रहा है तो यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ age problems. Okay, these are actually really very important, not only in 10th standard, in your upcoming JEE NEET exams and all are consisting such kind of age problems. तो ये वाले बहुत ही important होते हैं बेटा. जो भी आपका 9th 8th 9th 10th syllabus जो भी होता है ना, these syllabus is very important. It matters in your upcoming future competitive exams. So this kind of
age problems not only in JEE, NEET, like in upcoming teaching field related exams or any banking exams, railway exams, everywhere ये आ जाते हैं भाई साहब. फाइंड आउट कीजिएगा एज को. चलिए देखते हैं. सो रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. रोहन नाम का लड़का है, उसका एज क्या है पता नहीं, सॉरी मुझे तो नहीं पता है. ओके आपको पता है या नहीं पता नहीं, लेकिन पता होगा तो भी किस रोहन का एज पता है आपको वो भी नहीं पता है मुझे. चलिए ठीक है. रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. रोहन नाम का एक लड़का है. ओके उसकी मदर, ओके उसकी जो मॉम है रोहन से कितने साल बड़ी है बेटा? 26 ईयर्स. ओके ओल्डर देन हिम. नेक्स्ट, the product of their age 3 years from now. देखो बेटा अभी से 3 साल बाद, ओके अभी से 3 साल बाद मतलब +3. दिस इज 2023 +3 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, है ना. सिमिलरली तो आफ्टर 3 years और फ्रॉम नाउ दिया गया है 3 years फ्रॉम नाउ इट विल बी 360. दोनों का प्रोडक्ट बता रहे हैं. ओके प्रोडक्ट ऑफ देयर एज. वी नीड टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज. तो हम लोगों को रोहन्स का प्रेजेंट एज है. दिस इज अ सिचुएशन. एक्चुअली हमें यहाँ पे किसी का एज फाइंड आउट नहीं करना है. हमारा मेन क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लिखना है बस. Okay, we are not bothering about what is the age of Rohan, what is the age of his mother. ये सब नहीं चाहिए हम लोगों को. बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सॉल्व करना है. उसके आगे का मेथड तो आपको पता है. हाउ टू फाइंड द solve the quadratic equation by prime factorization, then by formula method. If you will simplify that, you will definitely get the answer. But in this question, that is not our question. Okay, our main intention is to find the quadratic equation. चलिए चलते हैं. रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. तो सॉल्यूशन कर लेते हैं. सो हम लोगों को पता नहीं रोहन का एज. सो लेट रोहन्स एज बी x. ठीक है. चलिए देन रोहन्स मदर्स एज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 26 ईयर ओल्डर. हम अब की बात करें, नॉट आफ्टर 3. यू डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम यहाँ पे 3 इयर्स भी दिया गया है, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है. डोंट वरी. तो हम अब की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम लोग. तो अब प्रेजेंट एज ऑफ रोहन है x एंड रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज इज शी इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. सो दैट x प्लस 26 फिर ये हो गया हमारा प्रेजेंट एज. देन कमिंग टू आफ्टर 3 इयर्स. आफ्टर 3 फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एज क्या चल रहा है? 16 या 15 चल रहा होगा. 16 ही कंसिडर कर लेते हैं हम लोग. ओके मोस्ट ऑफ यू आर 16 ईयर्स ओल्ड है ना. तो 16 आफ्टर 3 इयर्स आप कितने एज के रहोगे? यस आप कितने एज के रहोगे? 19 के रहोगे, है ना. क्या किया आपने यहाँ पे? 16 + 3 किया ना. सिंपली वी हैव टू डू हियर आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज इक्वल टू x + 3 करना है आपको. ठीक है. ठीक है. देन अभी आते हैं आपके नहीं सॉरी रोहन्स के मदर के ऊपर, जो कि है लिखना है आपको हिज मदर्स एज आफ्टर 3 इयर्स. तो अभी कितना है? x + 26 है. आफ्टर 3 के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? +3 करना पड़ेगा. इट बिकम्स x + 26 + 3 इज 29. सो हिज मदर्स एज हो गया बेटा 29. यहां तक समझ में आ चुका होगा आपको. तो हमारा मेन डाउट यहीं पे होता है. इसके आगे का स्टेप्स तो आप जानते ही हैं क्या करना है ना. तो इन लोगों ने फिर क्या दिया हुआ है हम लोगों को? प्रोडक्ट दिया हुआ है. प्रोडक्ट इज गिवन दैट इज
60 है ना। चलिए लिखते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू 360 हो गया बेटा। ध्यान से देखना, प्रोडक्ट मतलब क्या करना है, आफ्टर 3 ईयर का प्रोडक्ट दिया गया है आपको, प्रेजेंट वाला नहीं। दिस इज जस्ट फॉर कंसिडरेशन, इसको आप कैलकुलेशन पार्ट में नहीं लेके जा रहे हो, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर रोहन का एज क्या है, x+3 है। उसकी मॉम का एज क्या है बेटा, x+29 है। इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, जो कि मैंने ब्रैकेट्स में रख दिया हुआ है, इटसेल्फ सेज मल्टीप्लीकेशन, देन इट इक्वल टू 360। सिंप्लीफाई द ब्रैकेट, x इंटू x इज x² हो गया बेटा, प्लस x इंटू 29 और x इंटू 29 इज 29x हो गया आपका, प्लस 3 इंटू x इज 3x हो गया आपका, देन 29 इंटू 3 इज कितना होता है, 87 होगा आपका, इक्वल टू 360। अब क्या करना है, चलिए जल्दी जल्दी से बताना है आपको। x² कीप एज इट इज, 29, 30, 31, 32 हो गया, x को ऐड कर लीजिए, इट बिकम्स 32, x हो गया आपका, प्लस 87 कीप एज इट इज, 360 प्लस 360 इस साइड में आ रहा है तो क्या बनेगा आपका, -360 बन जाएगा आपका, विच इज इक्वल टू 0। -360 प्लस 87 करोगे आप तो कितना रह जाएगा, x² प्लस 32x प्लस 10 में से 3 चला जाएगा तो 7 चला जाएगा तो बच जाएगा 3 एंड 7 273। तो लोग आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलिए बेटा टैली कीजिए आपका आंसर अलोंग विद दिस और देखिए सही है या नहीं है, जल्दी से देखना है आपको। ये समझ में आ रहा है ना, यस गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है आपका, इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को लिया नहीं है ताकि आप भी कर सको, क्योंकि अगर सब क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगी तो आपके लिए क्या रह जाएगा, है ना, स्पून फीडिंग हो जाएगा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आपको। 4th क्वेश्चन क्या है बेटा, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे स्पीड दिया गया है, कितनी किलोमीटर की स्पीड में जा रही है ट्रेन, 480 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे जा रही है ट्रेन, ओके। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, अगर आपका स्पीड हो गया आपका x रखोगे आप तो लेस देन हो गया है x-8 आएगा आपका, ओके। वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, जो कि 3 hours ज्यादा ले रही है, क्या करने के लिए, कवर द सेम डिस्टेंस के लिए, ओके। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आएगा, स्पीड इंटू टाइम आएगा बेटा। और आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, अगर दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला ले लोगे आप तो आपका आंसर, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। सो आई होप आप लोग जरूर करोगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि हाउ टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट। जिन जिन लोगों ने में भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप जल्द से जल्द मैथ्स के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।